Yes, hello students, welcome to S2S classes। आज हम +1 के लिए आगे सिलेबस कर रहे हैं। इसमें 3 डायमेंशन ज्योमेट्री चैप्टर 11 चल रहा है और इसका लास्ट है आज मिसलिनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन 1 to 4। ओके, वी हैव डन एक्सरसाइज 11.1 and 11.2। ओके, डिस्टेंस फार्मूला आल्सो डन बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके, now 3 vertices of a parallelogram, question number 1 in miscellaneous. A, B, C, D are A 3 minus 1 2, B 1 2 minus 4, C minus 1 1 2. Find the coordinates of fourth vertex. अब इसमें हमें पता होता है कि एक पैरेललोग्राम जो भी है, लेट अस सपोज ये कोई पैरेललोग्राम है। ओके, इसमें डायगोनल जो है bisect each other. Diagonal of a parallelogram bisect each other. Okay, so as ABCD is a parallelogram, solution implies that diagonals AC and BD bisect। ये प्रॉपर्टी है, हमें पता है, bisect each other at let this point O। So O is midpoint of AC, so O is midpoint of AC। Okay, so this implies point O इक्वल क्या होगा? पॉइंट O x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 मिड पॉइंट, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 z1 प्लस z2 डिवाइड बाई 2। ओके, then this implies अब A B C D A and C AC डायगोनल कौन सा है? AC। तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, तो 3 minus 1 2 डिवाइड बाई 2 then 1। ओके, then y1 is minus 1, y2 1, addition 0 0 divided by 2 then 0, z1 is 2, z2 is 2, 2 plus 2 4, 4 divided by 2 then 2। this is your point O। okay, now O is mid midpoint of अब BD अदर डायगोनल, BD का भी मिड पॉइंट होगा, सेम पॉइंट है,
So this implies point O coordinate, same formula, okay, same formula, x1 plus x2 divided by 2 for the B D. अब D हमने मान लिया, let D is x y z, okay, let it point D. So then BD opposite 1 plus x divided by 2 comma BD y1 y2, तो 2 plus y divided by 2 comma z1 plus z2 BD, तो minus 4 plus z divided by 2. This is also point O, same point. So from first and second इसको clear solve नहीं कर सकते, तो this let second, this is first, same point O, तो point corresponding coordinates must be equal, x is equal to x, y is equal to y, z is equal to z of this point O. From first and second, from first and second, equating coordinates such that 1 plus x divided by 2 must be equal to 1, comma y coordinate 2 plus y divided by 2 must be equal to 0, and third z coordinate minus 4 plus z divided by 2 must be equal to 2, z coordinate 2. Then this implies, simplify 1 plus x divided by 2 equal to 1, तो 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, तो 1 plus x is equal to 2, 1 plus x is equal to 2, then x is equal to 2 minus 1, 1, okay. Similarly 2 plus y upon 2 equal to 0, then y is equal to, ये 2 into 0 0, तो minus 2, and z coordinate also equating, minus 4 plus z upon 2 equal to 2, then 2 2 जा 4, तो minus 4 plus z is equal to 4, then plus 4 that side, then z is equal to 8. Hence required fourth vertex D equal x coordinate 1, y coordinate minus 2, and z coordinate 8. Answer. This is the fourth vertex of this
पैरेललोग्राम. डन. क्या यूज हुआ? प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम. दिस. ओके, क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस. मीडियंस की लेंथ फाइंड करनी ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस A 006, B 040, C 600. Let this triangle ABC with vertices A, B, C, median AD, median BE and median CF. Medians, all medians length we have to find. So it means first we have to find the midpoint D. We know. So solution, midpoint of medians. Okay, medians पहले, medians AD, comma BE and CF. इन फिगर हमने एक फिगर बनाई, इसमें मीडियन ले लिया. सो दिस इंप्लाइज D is midpoint of, D is, मीडियन की डेफिनेशन होती है मिड पॉइंट को मिलता है. D is midpoint of BC. So this implies D point के कोऑर्डिनेट्स x1 plus x2 divided by 2 BC, point B and C. Okay, so 0 plus 6 divided by 2, then 3, then 4 plus 0 divided by 2, then 2, then 0 plus 0 divided by 2, then 0. ओके, कौन सा यूज किया फॉर्मूला? अभी किया हमने यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, कोमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, कोमा z1 प्लस z2 डिवाइड बाई 2. Okay, this midpoint formula used. Then similarly, E is the midpoint of, E is the midpoint of, E is the midpoint of AC. In figure you see median BE. Okay, so E is the midpoint of AC. Then this implies E point coordinate A and C point से, A and C. So 0 plus 6 divided by 2, then 3, then 0 plus 0 divided by 2, then 0, then 6 plus 0 divided by 2, then 3. Clear? This is 1, this is 2. Now, and F is mid point of F, AB. This implies, okay, point F is equal to AB point से, AB, तो 0 plus 0 divided by 2, then 0, then 0 plus 4 divided by 2, then 2,
then 6 plus 0 divided by 2, then 3. This is third. All three मिड पॉइंट्स आ गए हमारे, ठीक है। तो हमें क्या लेना होगा, फर्स्ट मीडियन निकालनी है, फर्स्ट मीडियन ए डी। सो मीडियन ए डी की लेंथ, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड डी, 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 ठीक है। मिड पॉइंट, सॉरी लेंथ, लेंथ ए डी, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई 2, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, सॉरी, फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन 2 पॉइंट, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 whole square and square root. This is distance formula. Okay, then using this, then AD x2 3 minus 0 whole square, AD 3 minus 0 whole square, then 9 plus 2 minus 0 whole square, then 4 plus 0 minus 6 whole square, 36. This is equal to square root 36 plus 4, 40, 49, then 7. Direct we can write root 49 means 7. Clear? Done. Median second BE, median BE, same formula between 2 point B and E and B. Okay, so 3 minus 0 whole square, 9 plus this is BE. Okay, so 3 minus 0 whole square plus 0 minus 4 whole square, 16 plus 3 minus 0 BE, ठीक है, 3 minus 0 whole square, then 9, then 9 plus 9, 18, 18 plus 16. Okay, three minus 0 whole square 9, 0 minus 4 whole square 16, 3 minus 0 whole square 9, ठीक है। ओके, 9 9 18, 18 and 16 34, 18 16 34, तो रूट 34, ठीक है। देन नेक्स्ट, एंड मीडियन AD BE CF, third median CF, distance formula same between 2 points C and F, F this and C is this, CF, तो 6 minus 0 whole square, 36 plus 0 minus 2 whole square, 4 plus 0 minus 3 whole square, 9, 36 plus 4 40 and 9 49, then root 49 7. So these are the required length of the medians. Answer, ठीक है, done. Similarly, next question we can do. Yes, beta. Next question, question number 3.
if the origin is the centroid of the triangle PQR। तो PQR का जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड हम जानते हैं, सेंट्रॉइड मीडियंस इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड एंड 2:1 में वो डिवाइड करता है मीडियन को। कौन? सेंट्रॉइड पॉइंट। सेंट्रॉइड पॉइंट डिवाइड्स द मीडियन इन 2:1। तो उससे एक फॉर्मूला है, वो यूज होगा कि सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट, सेंट्रॉइड ओके, सेंट्रॉइड क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, 2:1 में। उससे फॉर्मूला बनाया गया सेक्शन फॉर्मूले से। ओके, देन y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3, सेक्शन फॉर्मूले से m/n, 2:1, 2 + 1 3 डिवाइड बाय 3 याद रखना। तो z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइड बाय 3, दिस इज योर सेंट्रॉइड। तो यूज दिस, ओके, बिकॉज ये फॉर्मूला यूजिंग हेयर, ओके, x1 y1 z1 x2 z2 x2 y2 z2 x3 y3 z3, these are points। यहाँ लिख सकते हैं, ओके, x1 इक्वल 2a x1, x2 इक्वल सेकेंड पॉइंट में -4, x3 इक्वल थर्ड पॉइंट पर x3, x कोऑर्डिनेट x3 8, ओके। देन सिमिलरली y1 फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 2, y2 सेकेंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट q का 3b, ओके, एंड y3 14, क्लियर? नाउ z1 सिमिलरली, z1 फर्स्ट पॉइंट का z कोऑर्डिनेट 6, z2 -10, z3 थर्ड पॉइंट का z कोऑर्डिनेट 2c। ये वैल्यूज हमने कंपेयर करके ले लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, डन। तो हम क्या करेंगे? यूज फॉर्मूला सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड पॉइंट हमारा ओरिजिन है। व्हाट इज गिवन? ओरिजिन। तो सेंट्रॉइड पॉइंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0,0,0 ओरिजिन। दिस सेंट्रॉइड is equal x1 plus x2 plus x3 divided by 3, 2a minus 4 plus 8, 2a minus 4 plus 8, पहले वैल्यू भर दो, फिर सॉल्व कर लेंगे बाद में, डिवाइड बाय 3, ओके, कॉमा y1 plus y2 plus y3 divided by 2, तो 2 plus 3b plus 14
2 plus 3b plus 14 upon 3 comma then z1 plus z2 plus z3 by 3 तो 6 plus minus 10 plus 2c divided by 3 equating coordinate this ये पॉइंट सेंटर पॉइंट सेम तो इक्वेटिंग x कोऑर्डिनेट विद x 2a minus 4 plus 8 upon 3 equal to 0 तो 2a plus 8 minus 4 तो plus 4 तो 2a plus 4 is equal to 3 into 0 0 ओके दूसरा पॉइंट 14 plus 2 16 तो 3b plus 16 is equal to 0 3 into 0 0 and last 6 minus 10 minus 4 plus 2c also equal to 0 then solving a equal to minus 4 divided by 2 minus 2 clear after that b is equal to minus 16 upon 3 and c equal to minus 4 उधर जाके plus 4 तो 2c is equal to 4 c equal to 4 divided by 2 then 2 clear done so these are the answer next question similarly okay very important question this yes beta next question beta question number 4 if a and b be the points 3 4 5 and minus 1 3 minus 7 ये कोई दो पॉइंट है a and b 3 dimension स्पेस में respectively find the equation of set of points p यानी जनरल पॉइंट है वेरिएबल है पॉइंट्स बहुत सारे हैं p सिंगल पॉइंट नहीं है तो जनरल है यानी कि एक्स वाई जेड वेरी कर रहा है बट किस तरह वेरी कर रहा है एक कंडीशन है सच दैट पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर जो p से डिस्टेंस a की और p से डिस्टेंस b की दोनों के स्क्वायर्स का सम एक कांस्टेंट आता है उसका स्क्वायर हमेशा इस तरह से मूव कर रहा है तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए आपको उसका लोकस फाइंड करना उसका पाथ फाइंड करना उसका ट्रेस पाथ फाइंड करना किसका पॉइंट्स सेट ऑफ पॉइंट्स p यानी मूविंग पॉइंट है वो बहुत सारे पॉइंट है p सिंगल नहीं है जनरल इसलिए एक्स वाई जेड बट वो मूव कर रहा है ओके कोऑर्डिनेट चेंज होते जा रहे हैं एक्स वाई जेड बट सच दैट पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर वेयर के इज ए कांस्टेंट तो ये कंडीशन गिवन है इसको वेरीफाई कर रहा है तो इसलिए हम क्या करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे सो सॉल्यूशन यूज करेंगे इसका पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर गिवन यह एज ए गिवन हमें सेट ऑफ पॉइंट लोकस ट्रेस पाथ बताना इस इक्वेशन का तो डिस्टेंस फॉर्मूला पी ए की वैल्यू पी ए स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर रूट खत्म हो गया तो पी ए स्क्वायर यानी डिस्टेंस का स्क्वायर स्क्वायर रूट फिनिश तो हो गया पी लेट पी क्या है जनरल पॉइंट है एक्स वाई जेड लेट
P this. Okay. So putting this distance formula x2 minus x1 whole square, तो x a पॉइंट ये है x minus 3 whole square प्लस y2 minus y1, तो y minus 4 whole square similarly z minus z2 minus z1 z minus 5 whole square स्क्वायर रूट, बट यहाँ स्क्वायर है तो पी ए स्क्वायर ये बन गया प्लस पी बी एक्स टू माइनस माइनस वन, तो एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, तो वाई माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस माइनस सेवन, तो जेड प्लस सेवन माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर. ओके, नाउ सिंप्लीफाई. होल स्क्वायर सभी के सब अलग अलग टर्म है, एक्स एक्स वाली इकट्ठी लिख लेंगे दोनों, वाई वाई एंड जेड जेड, तो होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस सिक्स एक्स. ओके, अब ये एक्स लिख लो प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वन स्क्वायर वन प्लस टू ए बी टू एक्स. अब ये कर लो प्लस वाई माइनस फोर होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 16 एंड माइनस 8 वाई प्लस वाई माइनस थ्री होल स्क्वायर कर लो वाई स्क्वायर प्लस थ्री थ्री जा 9 माइनस थ्री टू जा 6 वाई प्लस जेड माइनस फाइव होल स्क्वायर करो जेड स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10 जेड प्लस this z square plus 7 square 49 clear whole square and plus 2ab then 14z. like term solve करो x square plus x square 2x square स्क्वायर वाले पहले लो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू जेड टू वाई स्क्वायर एंड सिमिलरली जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू जेड स्क्वायर. ओके, दिस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. नाउ माइनस सिक्स एक्स प्लस टू एक्स माइनस फोर एक्स. ओके, आफ्टर दैट माइनस एट वाई माइनस सिक्स वाई, तो माइनस के 14 वाई लाइक टर्म सॉल्व हो गई. नाउ जेड माइनस 10 जेड और प्लस 14 जेड प्लस 4 जेड. ओके, नंबर 9 प्लस 1 10 16 plus 9 25 25 plus 49 9 plus 5 14 carry 1 4 2 6 1 7. Done. Every term comes out here is equal to k square is equal to k square. Now
सिंप्लीफाई मोर एंड आंसर। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा आई थिंक, हाँ यस, ये नंबर नहीं डिवाइड है, एज इट इज लिख लो फिर। ओके चलो, तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 4x माइनस 14y प्लस 4z and plus number 5 plus 4 9, 7 9 1 10. Okay, is equal to k square. Done. This is your equation. Okay, find the equation. Done. एक बार और चेक कर लो, -1 3 7 3 4 5 ये x -3 होल स्क्वायर, y -4 होल स्क्वायर, z -5 होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर z का a स्क्वायर z स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक हो गया। अब ये फिर a स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड देन प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ओके, so like this we can solve, simplify only. Now like, share and subscribe the channel and send the video to the maximum contactors. उनको जरूर भेजें जिनके पेरेंट्स के बच्चे 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं ओके, या आपके डायरेक्ट कोई फ्रेंड है, तो उनको ये गाइड करना है कि आप जो है पहले सब्सक्राइब कर ले चैनल को, तब आपको एक लिंक मिलेगा, इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक 10th क्लास का है और एक 11th का है, 12th का है। तो सारी वीडियो 10th क्लास की उस लिंक में मिल जाएंगी, सारी वीडियो 12th क्लास की उस लिंक में मिल जाएंगी, सारी वीडियो 11th क्लास की 11th के लिंक में मिल जाएंगी। तो पहले सब्सक्राइब करेंगे तो लिंक खुलेगा, अदरवाइज नहीं, उनको गाइड कर देना। अगर गाइड पहले सब्सक्राइब किया हुआ देन ओके, ठीक है। और आगे भी अपने फ्रेंड को शेयर करें, उन्हें गाइड करना और सेम आगे गाइड कर दें। सब्सक्राइब द चैनल एंड सेंड द वीडियो टू द मैक्सिमम कॉन्टेक्ट, ओके, एंड राइट द कमेंट इन कमेंट बॉक्स। उसको मत भूलना कि वीडियो कैसी लगी, कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू।